علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم آئیے کچھ کہنے ہم آپ کو اپنے رب مولانا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدنا مولانا محمد علی ما فی بداية صلاة الله ومدى أوامر الله صلى الله عليه وسلم۔ پچھلی جمعے اصول کی تحت گفتگو شروع ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے کل حکم زیارت ہے۔ اب اس میں زیارت میں تھوڑی بہت تفصیل ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور میں پہلا حکم ہے فرض، تو فرض میں کافی چیزیں آتی ہیں، اور میں سے صرف جو نماز کا فرض ہے آج میں اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اس طرح سے گنے میں بھی انشاءاللہ بڑی آسانی رہے گی اور آپ کو لگے گا کہ ہم شریعت کو فالو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ کل نمازیں ہمارے اوپر 7 فرض ہیں۔ کتنی؟ کل 7 نمازیں فرض ہیں۔ کیوں نہیں یاد رہیں گے؟ نماز کتنی فرض ہے؟ ہمارے ساتھ بولتے جائیے، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 7۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ اور جنازہ، یہی 7 نمازیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں نمازوں کے علاوہ۔ دوسرے فرائض ہیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ ہے، لیکن نماز یہی 7 فرض ہے۔ نماز کا ذکر سب سے پہلے اس لیے میں نے چھیڑ دیا، احکام کے معاملے میں جو امر حکم دیا گیا کرنے کا، میں سب سے پہلا میں نے چھیڑ دیا نماز کا۔ اقیموا الصلاۃ میں نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے نماز کو قائم رکھو۔ پہلے چھیڑ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نماز کی تفصیل کرنے جائیں تو اس کے اندر یہ تمام احکام آ جائیں گے۔ فرض کے ساتھ واجب بھی آئے گا، سنت بھی آئے گا، مؤکدہ بھی، غیر مؤکدہ بھی، مستحب بھی، نفل بھی، اگر پھر مکروہ بھی آئے گا، ایسا بھی آئے گا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی اگر ہم نماز کی تفصیل کرنے جائیں، اور یہ ایسی تمام احکام ہیں۔ نماز کا ذکر اوپر چھیڑ دینے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں بندوں کی پیشی ہوگی، اس امت میں جو حساب کتاب شروع ہوگا، تو سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حساب میں اگر کوئی پار ہو گیا، یعنی اس کی فرض نمازیں پوری ہیں، تو آگے کی چیزوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے، اور اگر کچھ کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ چلو فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو اس کے پاس اگر سنت نفل وغیرہ کچھ ہے تو اس کو ملا دو، پورا کر دو۔ مطلب اس گنتی کو، اس کمی کو پورا کرنا ہے تب پورا ہوگا نماز کا۔ اس حدیث کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن آپ نے صلہ رحمی کیا نہیں کیا، آپ نے حقوق ادا کیے نہیں کیے، آپ نے دوسرے فرائض کی طرف توجہ کی نہیں کی، یہ سب بعد میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا۔ سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے، اور ہمارے سنی مسلمانوں کے اندر اللہ کی پناہ کی کمی آ گئی ہے کہ ہم دعوتیں کھانے کھلانے میں آگے ہیں، ہے نا، نیاز پاتیاں وغیرہ سب چیز میں ہم آگے رہتے ہیں، اور دوسرے معاملات میں ہم آگے رہتے ہیں، اپلائی اور وہاں پہ تمام چیزوں کے معاملات میں ہم آگے رہتے ہیں، نماز کے معاملے میں بہت پیچھے۔ جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا، اور بندوں کے معاملات میں یہ تو عبادات کا تعلق ہو گیا، جو معاملات ہیں بندوں کے معاملات کا جو حساب ہوگا قیامت کے دن
पहले कत्ल का हिसाब होगा। इबादत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और मामलात में सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। इन दोनों चीजों की अहमियत को आप इससे समझ सकते हैं, इसीलिए हमने नमाज ही शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह बाकी के फराइज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हमने याद किया है कि नमाज की ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करें। तब आपको यहाँ पे एक चीज को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि नमाज में कितनी फर्जें मालूम हो, वो भी सातों इकट्ठी नहीं है। सातों नमाजें इकट्ठी फर्ज नहीं है मालूम, अपने अपने वक्त के साथ है। जुमा जो फर्ज है मुस्तकिल ज़ोहर के वक्त में, और इसके अलावा जो सातवां है जनाजा फर्ज है, उस फर्ज किफाया फर्ज ऐन नहीं, यानी 4-6 लोगों ने भी अगर जनाजा पढ़ दिया हो गया। और ये बाकी की नमाजें ये फर्ज आइन है, मतलब हर आदमी को पढ़ना पड़ेगा, हर इंसान को इस नमाज को अदा करना ही पड़ेगा। अब वो जमात में नहीं कर पाया, हमारे यहाँ माहौल ये भी चल गया है, माशाअल्लाह ये अल्लाह बचाए रखे। हमारे भाइयों की कुछ थोड़ा लेट होगी, जमात खत्म हो गई, अब नहीं जाते का मतलब जमात खत्म हो गई, मस्जिद में नहीं चल गई। अल्लाह पाक तो मौजूद है, आपके लिए अल्लाह का हुक्म मौजूद है, इन्ना सलात कारक मुबीन किताब मौजूदा, अल्लाह का हुक्म मौजूद है कि हमने वक्त के साथ नमाज पढ़ फरमाया। तो जब तक ज़ोहर का वक्त फर्ज है ज़ोहर का वक्त अदा कर लीजिए। आप काम काहिली कर जाते हैं और शैतान वसवसा डाल देता है कि अब मगरिब में जाएंगे इकट्ठे पढ़ लेंगे, ईशा में जाएंगे इकट्ठे पढ़ लेंगे। ये है हमारे लिए ये भी है, जरा किसी मामले में देर हो गई तो शाम को ही पढ़ लेंगे, ईशा में कौन आता है। वहाँ पे एक बहाना है, उनके साथ लंबा दर्स नहीं देते हैं। तो मैंने आपसे कभी मुआहिदा नहीं करवाया कि मैं जब तक दर्स करता रहूँगा तो आप बैठे ही रहोगे। मैं आपको मसला बता देता हूँ, जमात जब तक कायम है, आपने क्या किया, पीछे इस इमाम के नियत बांधी ना, जब तक आप तहरीमा में हो, जैसे ही सलाम फेर दिया आपने, अब आप जा सकते हो। अब मुफ्ती साहब की बंदिश नहीं है आपके ऊपर, अब इमाम साहब की बंदिश नहीं है, वो बंदिश खत्म हो गई, समझ गए। यहाँ तक कि मैं जो कहता हूँ कि भाई अगर आपको जल्दी है तो आप खुद ही दुआ मांग लो, निकल लो। मुफ्ती साहब दर्स करते हैं, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको रहना है वो रहेंगे, है ना। जिक्र अज़कार चलता रहेगा, कुरान पाक की तालीम होती रहेगी। आप उसमें ये न करो कि देर लगा देते हैं, जल्दी कर देते हैं। आपको जितनी देर बैठना है बैठिए, अल्लाह आपको उसका अजर सवाब अता फरमाए, है। नहीं बैठना है तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। बहरहाल तो हम नमाज के मामले में ये काहिली कर जाते हैं कि अभी कभी देर हो गई, जमात छूट गई, घड़ी देख लेते हैं। ये घड़ी आप आधा घंटा पहले क्यों नहीं देख ली? आप अपने काम में लगे हैं, आधा घंटा पहले भी तो इस पर तवज्जो कर सकते थे कि नहीं यार अजान होने वाली है, क्यों काम में लग जाऊं, अब नमाज पढ़ के आता हूं फिर काम में लगता हूं। आप उस वक्त नहीं, अपने काम को अव्वलियत देते हो, फौकियत देते हो, काम में लग जाते हो और काम में ऐसा मशगूल हो जाते हो कि वक्त निकल जाता है जमात का। नमाज का वक्त नहीं निकला, जमात का वक्त निकल जाता है। जमात का वक्त निकल जाता है तो फिर शैतान आपके अंदर एक वसवसा डालता है कि अब तो जमात हो गई, अब क्या जाना, अब इकट्ठे आसिर में पढ़ लेंगे, है। फिर आसिर में आते आते कोई और बहाना आ जाता है। इस तरह से नमाजें हमसे गायब होती चली जाती है। सुनिए, ये जो नमाजों को टालते हैं, टाल के वक्त निकाल के पढ़ते हैं, उनके बारे में 30वें पारे में अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज भूल बैठे हैं, यानी कज़ा करके पढ़ते हैं। इसकी तफसीर में आया जो कज़ा करके पढ़ते हैं उनके लिए वैल है। वैल समझते हैं? वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है, बहुत बड़ी मुसीबत का नाम है वैल। और जो नमाज को ज़ाय कर देते हैं या वक्त गुजार देते हैं, पढ़ते नहीं, उनके बारे में कुरान पाक में आया है फसौफा यलक़ौना ग़य्या, वो गैब डाले जाएंगे। गैब क्या है? ये भी जहन्नम की एक वादी है। इस वादी में ज़िनाकार लोग, शराब पीने वाले, माँ बाप को हुकूक अदा नहीं करने वाले, इज्जत देने वाले, नमाजों को कज़ा करने वाले, ऐसे लोगों को डाला जाएगा। और उसमें भी ज़िनाकार और नमाजी बेनमाजी को उस गैब वादी के अंदर हब नाम का एक कुआं है, उस कुएं में डाल दिया जाएगा। आपको मालूम है हब कुआं किस बड़ी बला का नाम है? कुरान पाक में अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, कुल्लमा
ज़िदनाहुम सईरा, जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया 1000 साल तक भड़कती रहती है। 1000 साल के बाद उसमें थोड़ी बहुत नरमी आने लगती है, तो अब जो कुआं है गई वादी में, उस कुएं का मुंह खोल दिया जाता है, फिर जहन्नम भड़कने लगता है। अब जो कुआं इतना जबरदस्त हो उसको खोल दिया जाए, पूरी जहन्नम भड़कने लग जाए, उस कुएं की करने का क्या होगा? जो बेनमाजी लोग हैं उसको कुएं में डाल देंगे, जो जिना करने वाले लोग हैं उसमें डाले जाएंगे, जो शराब पीने वाले हैं उसमें डाले जाएंगे, जो माँ बाप को ईजा देने वाले हैं उसको कुएं में डाले जाएंगे। आप अंदाजा लगा कैसी जबरदस्त सजा है। हम जरा से में काहिली कर जाते हैं, भैया ये काहिली कर जाना, वक्त गुजार लेना, सिर्फ कज़ा करना। रूहुल बयान में अल्लामा सैयद इस्माइल हक़ी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तशरीह करके जो फरमाया, रूहुल बयान में तफसीर कुरान पाक की तफसीर रूहुल बयान, उसमें लिखते हैं कि नमाज को जो कज़ा कर देते हैं, कज़ा हमेशा छोड़ दिए, वो तो बहुत बड़ी आफत है। नमाज को छोड़ देना तो बहुत बड़ी आफत है, उसके आफत का कोई हिसाब ही नहीं है। जो कज़ा कर देते हैं बगैर वजह के, उनके बारे में आया है कि वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया। और उस गुनाह कबीरा का वजन कितना है? तो अल्लामा सैयद इस्माइल हक़ी हनफी आप फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान के अंदर कि जैसे 70 मरतबा जिना करने के बराबर है। हमारे माशरे में किसी आदमी से ये बड़ा गुनाह एक मरतबा सरजद हो जाए तो पूरी ज़िंदगी के लिए हम महरूम ठहराते हैं, चाहे वो तौबा भी कर ले, चाहे वो सुधर भी जाए, है ना। पूरी ज़िंदगी के लिए हम आदमी को और इंसान ठहराए रखते हैं कि ये इंसान ज़िना है, जो दिन में 5 नमाज़ें छोड़ता है। एक नमाज छोड़ने का गुनाह 70 मरतबा जिना करने के बराबर। जो 5 नमाज़ें छोड़ता है, अब आप हिसाब लगा लो, दिन में 350-400 मरतबा जिना करता, उस आदमी के पुनर्वसन का क्या होगा? इसीलिए कहा गया है कि जिस घर में बेनमाजी रहता हो, जुनूबी शख्स रहता हो, नापाक जानवर रहता हो, रहमत के फरिश्ते वहां आते ही नहीं। हम आप अपने घरों की परेशानियों को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर में परेशानियाँ नहीं जाती, आपस में ताल्लुकात में कायम रहते, आपस में बुराइयाँ हो जाती है, हम एक दूसरे से मोहब्बत मुवद्दत के साथ रह नहीं पाते, तकलीफ़ें बनी रहती हैं मियाँ। तो आपने नमाज़ें छोड़ के उन तकलीफ़ों को दावत दी है। यहाँ पे एक बात और अर्ज कर देता हूँ, मैं 10 साल पहले से ये बात कहता हूँ, हमारे फुक़हा किराम ने अपनी किताबों में लिखा है, हदीस पाक में आया है, यानी हमारे आका ने भी इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, जो नमाजों को इस तरह से ख्याल में रखा कि जैसी वक्त हुआ अपने घर में तहारत किया, वज़ू किया। वज़ू कहाँ? अपने घर में, और सुन्नत पढ़ी और फर्ज के लिए मस्जिद को गया। ये जो आया है ना, हर कदम पे नेकी लिखी जाती है, हर कदम पे गुनाह मिटाया जाता है, वो उन लोगों का जो घर से वज़ू करके आते हैं। हम लोगों ने तो मस्जिद में वज़ू करना अपना हक समझ रखा, मस्जिद में चंदा लेते हैं तो पानी खर्चा नहीं करेंगे मस्जिद का। कुछ हज़रात मस्जिद आएंगे तो सीधे पंखे के पास में खड़े होंगे, मस्जिद में पैसा देते हैं तो पंखे की हवा नहीं लेंगे क्या? याद रखो क्या है, अल्लाह का, अल्लाह के ऊपर किसी का कोई हक नहीं है। आप खुद इतने हुकूक के नीचे दबे हो, पूरी जिंदगी अगर सजदा में रहो तो अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकते। आपका क्या हक है जाएगा? और हम लोग 150-200 मस्जिद में दे देते हैं, वहाँ जाते हैं। अल्लाह बचाए, ऐसी सोच मत बनाइए। तो हदीस में जो बशारत आई, हर कदम पे नेकी लिखी जाती है, हर कदम पे गुनाह मिटाया जाता है, हर कदम पे दर्जा बुलंद किया जाता है, वो हदीस में आया कि वो लोगों के लिए है जो घर से वज़ू करके सुन्नत पढ़ के तब फिरते हैं। इसका एक फायदा है मालूम, अभी 2 साल पहले लॉकडाउन लग गया, मस्जिदें बंद, नमाज़ें ये वो, तो भाई लोगों ने नमाज छोड़ के बैठ गए। मैं पहले से कहता रहता था, बहुत पहले से मैं मंडला से ये तकरीर करता था, लोगों को बताता था कि हमारे फुक़हा ने जो फरमाया, हदीसों में जो आया कि घर में नमाज पढ़ो, उसमें मसलहतें हैं। हदीस पाक में हमारे आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तखज़ू मिन बुयूतिकुम मस्जिदा ला तत्तखिज़ू बुयूतकुम क़ुबूरा। सरकार फरमाते हैं, अपने घरों को मस्जिद बना लो, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसकी तशरीह क्या है?
सुन्नत नमाज घर में पढ़ो और फिर मस्जिद जाओ, तो तुम्हारे घर भी मस्जिद हो गई, कब्रिस्तान नहीं रहा। और जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है इस हदीस के मुताबिक, समझ रहे आप। अब आप हम कहते हैं परेशान है तो कब्रिस्तान में रह रहे हो तो सुकून कहाँ रहेगा। जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है सरकार के फरमान के मुताबिक। अब जो कब्रिस्तान में रह रहा है कि सुकून में रहेगा। ऐसी सुकून की तलाश है तो अपने शहर में एक और खुला कब्रिस्तान में वहां जाके एक रात रह के देखो कितना सुकून मिलता है। तो आपने तो अपने घर को कब्रिस्तान बना डाला है, अब सुकून ढूंढ रहे हो। कब्रिस्तान में सुकून तब होगा जब अल्लाह रसूल को आप राजी करके इस दुनिया से रुखसत होंगे, और उससे पहले आपको कब्रिस्तान में सुकून नहीं मिल सकता। जितना इबादत गुजार, जितने ही परहेजगार हो जाए, जाके कब्रिस्तान में रात भर गुजार के आए तो समझ में आ जाएगा कितना सुकून रहता है कब्रिस्तान में, समझ गए। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया रात में कब्रिस्तान मत जाया कर, भी सुकून नहीं आती है, जिंदगी का सुकून छिन जाता है, खलल पड़ जाता है। मैं अर्ज कर रहा था प्यारे की नमाज, तो उस वक्त मैंने ये बात कही थी तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार ये सुन्नत घर में पढ़ने का है तो मस्जिद का कैसे आबाद होगा, तो फर्ज मस्जिद में पढ़ो ना भाई। अब आदत बनी नहीं, अगर ये आदत बनी होती तो लॉकडाउन लग गया, ठीक है, इसका बहुत बड़ा फायदा भी है। एक तो आपका घर कब्रिस्तान में मस्जिद बनेगा, आप घर में सुन्नत नमाज पढ़ेंगे, और उसका दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे देख के आपके साथ खड़े होंगे, समझ गए। आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती होगी, टीवी चलाती होगी तो कम से कम उतनी देर टीवी बंद रखेगी। आप सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं तो टीवी तो कम से कम उतनी देर बंद रहेगी, उसको भी फिक्र होगी कि मेरे आदमी यहाँ भी नमाज पढ़ रहे हैं, घर मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ दूँ, तौफीक मिलेगी। हर बात सिर्फ मुंह से कह के नहीं होती प्यारे, कुछ बातें हमारे अमल से जाहिर होती है। ये दावत का वो तरीका है कि आप अपने घर में नमाज पढ़ने लग जाओ तो आपके बच्चे देख देख के शुरू हो जाएंगे। जिस घर में माँ बाप डांस करते हैं वहाँ के बच्चे डांस करते हुए मिलेंगे, जिस घर में माँ बाप तिलावत करते हैं वहाँ के बच्चे तिलावत की तरफ माइल मिलेंगे, जिस घर में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे। यारे ये माँ बाप का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। हमने वो आदत नहीं बनाई कि घर में नमाज पढ़े, हमने तो समझ लिया मस्जिद गए तो नमाज पढ़ लिए, अब मस्जिद बंद तो भाई लोगों की नमाज भी बंद। इतना फोन करते थे उस वक्त, कैसा करें मुफ्ती साहब नमाज मस्जिद, मैंने कहा घर में पढ़ दोगे, घर में कहाँ मजा आएगा। मैंने कहा नमाज मजा के लिए पढ़ते हो क्या, नमाज पढ़ने का मतलब अल्लाह का हुक्म अदा करना, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ो। हमारे बुजुर्गों ने मियाँ गिरती हुई बर्फ के बीच में नमाज पढ़ी, तपती रेत धूप में नमाज पढ़ी, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह को राजी करने के लिए जहाँ मौका मिला वहाँ नमाज पढ़ी। हम अपने घर में ही करते मजा नहीं आता, घर में टीवी देखते हुए मजा आता है, बाल बच्चों के साथ रहते हुए मजा आता है, दुनिया भर को खुराफात करते हुए मजा आता है, एक दूसरे की बुराई करते हुए मजा आता है, अकेले नमाज पढ़ने में मजा नहीं है। और फिर नमाज मजा लेने के लिए पढ़ते। सच्ची बात यह है कि प्यारे अगर मोहब्बत खुदावंद की आपके दिल में मौजूद हो तो आप नमाज पढ़ो तो वाकई में इसमें भी बहुत मजा है, मगर वैसा मजा उन लोगों को नसीब होता है जो वाकई में अहले तक़वा है। वरना हम तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं तो दूसरे के कदम दिखते रहते हैं। हमारा तो हाल ये है कि पढ़ नमाज रहे हैं और नजर दूसरों के ऊपर लगी हुई है, वो उसका ऐड देख रहा है, वो उसका ऐड देख रहा है, तो ये नमाज पढ़ना कहाँ हुआ, ये तो आप ऐड चोरी कर रहे हो मस्जिद में जाके, तो ऐसे को तो मस्जिद में आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला। आप समझ रहे मतलब को, अगर ये आदत बनाए होते तो लॉकडाउन के वक्त खुदा ना खास्ता कभी ऐसी नौबत आ जाए, अभी तक नहीं आई थी नौबत, आ गई तो हमारे भाई लोग नमाज छोड़ के बैठ गए। जोहर की नमाज पढ़ के एक पक्के नमाजी के घर गया, जोहर की नमाज के बाद उस वक्त सो के नहीं उठे थे, वो रात में सोए हैं तो बोले क्या करें, बैठे बैठे रहते हैं तो रात में टीवी देखते थे, सो गए। इतना लंबा सो गए। हमारे घर में इतना कोई सो जाए तो हमारे वाले साहब तो जला नहीं पड़ देंगे, हमारे वाले साहब थोड़ा जलानी टाइप की चीज है। फजर की नमाज में सलाम फेरने के बाद वो ऐसा देखते हैं, 6 भाई हम लोग ऐसा देखते हैं। एक दादा के औलादों में से हम लोग इस वक्त 64 लोग हैं, तो मस्जिद तो आधी हम लोगों से भर जाती है, छोटी सी मस्जिद बनाए गए। तो वाले साहब ऐसा सलाम फेरने के बाद ऐसा देखेंगे नजर मार के, जो नहीं है उसके दरवाजे में जाके आवाज लगाएंगे, जैसे मैं नहीं हूँ, आवाज लगाएंगे मुफ्तार जी अब बदू, मैंने समझा था जनाजा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, नमाज में नहीं दिखे ना, तो ऐसा बोलेंगे। बहुओं को बुरा लग जाता है, मगर वो पाक उनको हम पूछता है
किसी को नहीं बख्शते हो। ये आदम है। आप अपने घर में इतनी शक्ति नहीं, कम से कम थोड़ी सी ताकत के तौर पर ऐसे ही आपने नमाज ही पढ़ लो, सुन्नत ही पढ़ लो, आपके बच्चे देख के बिस्मिल्लाह शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को तो हम ये सब नहीं करते, सीधे पूरा मस्जिद के लिए उदाहरण लेते, और किसी वजह से मस्जिद का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया तो हमको छुट्टी मिल जाती है, अब तो नमाज हो गई, क्या जाना मस्जिद। शैतान सबके पीछे लगाया जाए। आप ये ना समझो कि शैतान मुझे नहीं बहका सकता, शैतान किसी को भी बहका सकता है। सरकार वाले बात को 3 साल में सताया शैतान, एक दो दिन थोड़ी सताया, 3 साल सताया, बहुत बात को सता सकता है। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या किया, सबसे पहली चीज जो क़यामत के दिन इबादत के मामले में हिसाब को पूछी जाएगी वो है नमाज, और मामलात में जो सबसे पहली चीज पूछी जाएगी वो है फर्ज। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम नमाज को समझ लें, नमाज को अपना लें, है ना। हम आप देखिए कितना डिसबैलेंस हो गए हम लोग। कई दफ़ा हम शब बरात वगैरह में नफिल नमाज पढ़ने के लिए क्या भीड़ लगाते हैं। वो अव्वाबीन की जो 6 रकात नमाज पढ़ते हैं ना शब बरात के दिन, हमारे भाई लोगों ने ऐसा माहौल पता नहीं कहाँ से बन दिया। वो सिर्फ समझते हैं शब बरात, वो शब बरात की खास नमाज नहीं है, वो पूरे साल है। अव्वाबीन की नमाज पूरे साल पढ़ते हैं बुजुर्गाने की, और हमने उसे एक दिन में खास कर किया क्योंकि किसी ने बता दिया कि जिंदगी का बीमा हो जाता है ना। क्या जो अव्वाबीन पढ़ते हैं वो मानते नहीं है, वो एक अलग मसला है। वो बुजुर्गाने दिन तसव्वुफ अहले तसव्वुफ का मसला है, वो अहले तसव्वुफ नहीं समझा सकते कि उसका क्या मतलब है। समझिए, उसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला साल आपको मौत आई ईमान के साथ खत्म होगी, ये है। तौबा की तौफीक मिलेगी फिर जाएंगे आप। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने और कुछ नहीं किया साल भर, और उसके बाद आप वो नमाज पढ़ ली तो मरेंगे ही नहीं। और हमारे भाई लोग 2 मकसदों से नमाज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक तो ये समझते हैं कि उससे मरना नहीं है, बच जाएंगे हम, और दूसरा उसका ये मतलब समझते हैं कि उसमें क्या है, खैर व बरकत हासिल होने वाली है, और हम खैर व बरकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी के पास भी चले जाते हैं, खैर व बरकत वहाँ से भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 मकसदों के तहत जो है ना कि भाई लोग उस नमाज की तरफ इतनी तवज्जो देते हैं कि उसी मस्जिद में मगरिब के वक्त उतने लोग नहीं रहते जितना अव्वाबीन में रहते हैं, और उसी मस्जिद में इशा के वक्त भी उतने लोग नहीं रहते जितना अव्वाबीन में पढ़ते हैं। जबकि अव्वाबीन नफ्ल है और इशा फर्ज है, अव्वाबीन नफ्ल है और मगरिब फर्ज है। आपसे क़यामत के दिन पूरी जिंदगी अगर आपने एक मरतबा भी अव्वाबीन नहीं पढ़ी, अल्लाह पाक नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं पढ़ा, और पूरी जिंदगी कोई एक मस्जिद छोड़ दिया तो अल्लाह पूछेगा क्यों नहीं पढ़ा। अगर पूरी जिंदगी एक मरतबा भी अव्वाबीन नहीं पढ़ी, अल्लाह नहीं पूछेगा क्यों नहीं पढ़ा, और पूरी जिंदगी एक मरतबा भी इशा की नमाज छोड़ दी तो अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा क्यों नहीं पढ़ा। समझ गए? तो अल्लाह का जो हिसाब में पूछा जाने वाला सवाल है वो फर्जों का है, नफिलों का सवाल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एक बात और अर्ज कर दूं, कुछ नमाजें मुस्तहब नफिले, कुछ नवाफिल। नवाफिल का मतलब समझते, मैंने पिछले जुमा आपको बताया था मुस्तहब की असलियत क्या है। ये लाजिम नहीं है कि हुजूर ने इसको किया है या नहीं किया, या हमारे सहाबा किराम बुजुर्गान दीन ने उसको अपनाया और उम्मत के लिए अच्छा जाना और अपनाया, ये उनका तरीका है। बस नफलों के लिए जरूरी नहीं कि हुजूर ने किया हो, कुछ नफलें ऐसी भी है जो हुजूर ने की है, समझ गए। ये जो बहुत सारी नफलें हैं ना, मिसाल के तौर पर हम ज़ोहर के बाद नफल पढ़ते हैं, ये नफल है, आप इसको पढ़ेंगे आपको इसका सवाब मिलेगा, खड़े होकर पढ़ेंगे तो डबल सवाब मिलेगा, सारी बातें हैं। मगर इसका सवाब फर्ज के मुकाबले में आ जाए कभी नहीं हो सकता। फर्ज फर्ज ही है, नफ्ल नफ्ल ही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि फर्ज यहाँ पे और नफ्ल यहाँ पे, ये इतने 5 दर्जों का फर्क है ना। 5वीं मंजिल में पहली मंजिल वाला कैसे होता है, फर्क है ना, तो बड़ा फर्क है। तो अर्थ ये है कि हमको फर्जों को अपनाना है। फर्जों को अपनाने में सबसे पहली चीज नमाज, और नमाज का मामला ऐसा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपको क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का ही सवाल किया जाएगा। आइए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते फरमाते हैं कि साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह तआला,
पूछा کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ فی وقتہا، حضور نے کیا فرمایا؟ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ فقلت ثم بعد، اس کے بعد پھر کیا پسند ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر بالوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ثم قلت وبعد یا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر کون سا عمل مطلوب ہے اللہ کے نزدیک؟ ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد تیسرے درجے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جہاد سے زیادہ ثواب فرض نماز میں ہے، جہاد سے زیادہ ثواب ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خدمت میں ہے، سمجھ گئے؟ جس میں اتنا ثواب ہے اور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ پہلا لفظ جو سرکار نے فرمایا صلاۃ فی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا، اس چیز کو ہم نے گما دیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس چھوڑنے کے سینکڑوں بہانے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب سے عرض کیا کہ نماز تو نہیں آیا، نماز یاد نہیں۔ بولے کیا بتاؤں، برسات کے دن ہے، مارکیٹ کی طرف چلا گیا تھا، تھوڑا کپڑوں کے اوپر چھینٹے آ گئے، تھوڑا چھینٹے آ گئے، کپڑوں کی اوپر چھینٹے آ گئے، آپ کے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے؟ آج کے دور میں یہ بہانہ کوئی کرے کہ میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہے، کپڑے کی وجہ سے میں نماز کو نہیں آیا، سنو ایک زمانہ تھا جب ہمارے مومنین کے پاس واقعی میں کپڑے نہیں تھے، ہے نا؟ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں نماز پڑھتے اور جیسے ہی سرکار سلام پھرتے اٹھ کے دوڑ کے چلتے۔ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو جندل کا کیا حال ہے؟ یہ نماز پڑھ کے جلدی سے نکل لیتے ہیں۔ سرکار تو جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن سب کے سامنے بات کچھ نہیں ہوتے جب آپ ہی جاننا چاہیے۔ دوسرے دن جب فجر کے وقت پھر ابو جندل تشریف لائے، حاضر ہوئے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا ابو جندل نماز کے بعد رک جانا، تم سے کچھ مسئلے ہیں۔ اب رک گئے، حکم حاکم کہنے پر پیش، اب وہ تھوڑ تھوڑ کانپ رہے کہ یا رسول اللہ کہ غلطی تو نہیں ہوگی، اس میں ایسا فرمایا کوئی بات تو نہیں آ گئی۔ نماز کے بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا رکنا۔ ہاں تو ابو جندل تم جلدی کیوں آتے ہو؟ تمہارے بھائیوں کو شک ہو گیا ہے، شک دفع کر دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کے پاس یہی ایک چادر ہے، میں اس میں آتا ہوں، نماز پڑھ دیتا ہوں اور پھر جلدی سے جاتا ہوں، اپنی زوجہ کو یہ چادر دیتا ہوں کہ وہ اور کے نماز پڑھتی ہے۔ جو واقعی میں ایمان والے ہیں ایک چادر میں 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ آج تو ہمارے پاس 10 جوڑے سے کم کسی کے پاس بھی کپڑے نہیں ہوں گے اور ہم کپڑوں کا بہانہ کر ڈالتے ہیں، کپڑوں کے آگے تھا چھینٹا، یہ کہ کپڑے میں چھینٹے آ گئے، آپ دھو نہیں سکتے، کہ نہیں دھو سکتے تو کپڑے بدل لو، ہے نا؟ تو نماز چھوڑنے کا بہانہ یہ شیطان ہر طرح سے کھیلتا رہتا ہے، یہ شیطانی چالیں ہیں، ذرا ذرا سی باتوں میں ہمارے دماغ میں ایسے وسوسے پیدا کر دیتا ہے تو پھر ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط بہانہ ہے۔ یہ مضبوط بہانہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو حکم خداوندی کی خلاف ورزی میں پھنسانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا، اپنے غور کرنے کا وہ کام ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرض فرمایا کہ سب سے پہلے اس کا سوال کیا جائے گا، اس کا مرتبہ بھی کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ آپ کو روزے کا حکم دیا، آپ کو زکات کا حکم دیا، آپ کو حج کا حکم دیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار احکام نازل فرمائے، ان تمام احکام کو اس زمین پہ نازل فرمانے کے لیے جب نماز کا حکم دینا ہوا، اپنے محبوب کو عرش عظیم میں بلایا اور بلانے کے بعد نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ کو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ نماز کا مرتبہ کیا ہے، کہ تمام احکام زمین میں بھیج دیے، جب نماز کا حکم دینا ہوا تو اپنی بات کا مرتبہ اور دیا بھی کس شان سے، میرے محبوب 50 نمازیں تمہاری امت کے لیے لے جاؤ۔ ہمارے آقا کو امت کے لیے خوش ہوتے ہی تھے، بڑے خوش ہوئے کہ چلو ماشاءاللہ اللہ نے میری امت کے 50 نمازیں دے دی، خوشی خوشی چلے آئے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے 6ویں آسمان پہ، موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ حضور واپس جائیے، میری امت تو 2 وقت کی ادا نہیں کر پائی، آپ کی امت 50 کہاں سے ادا کر لیجیے، بہت کمزور ہے، واپس جائیے۔ چلے گئے، کم کرتے کرتے 5 رہ گئی، اور 5 رہ گئی تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو 50 کا فرمایا تھا 5 کر دیا تو کم ہو گیا، نہیں۔ ہمارے اللہ نے ہمارے مہربان فرمان
5 रुपया लग गया, सवाब 50 का ही बदला देने में 50 भी का। आप अंदाजा लगाओ, 5 रुपये का काम करके 50 रुपया मिले तो आप काम को छोड़ना चाहोगे क्या? क्या ये अकल की बात है? और उसमें भी क्या है, अगर वो 5 जमात के साथ अदा कर लो तो हदीस पाक के फरमान के मुताबिक एक नमाज जो जमात के साथ पढ़ जाए तो 27 करके रहता है ना, तो 27 गुना तो ऐसी हो गई, और फिर उसको 50 है, हर 27 को 50 में आप पूरा कर लो। समझ गए? आप अंदाजा नहीं लगा सकते प्यारे के परवरदिगार आलम हमको कितना नवाजना चाहता है इस नमाज के तवज्जुह से। और नमाज ही एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी चीज है कि जब बंदा अपने रब से सबसे करीब होता है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया हमारे आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है ना। इस नाकल करके यहाँ पे थोड़ी सी गलत फहमी पैदा होती है या घटी गई है, उसको भी अर्ज कर देता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अपनी खास हाजतें पेश आ जाए तो नमाज पढ़ो, 2 रकात सलातुल हाजत की पढ़ लो, ये नमाज पढ़ लो, नफिल नमाज पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार की तौबा की नीयत से नमाज पढ़ लो। ये कब फरमाया मालूम है? आपकी पूरी नमाज़ें बराबर है तब। यहाँ तो हमारी फजर है नहीं, ज़ोहर है नहीं, असर है नहीं, मगरिब है नहीं, जिंदगी के सारे 27 साल की नमाजें छूटी हुई है और हम 2 रकात नफिल पढ़ने चले, जबकि ये तयशुदा मामला है जिसके दिन में फर्ज बाकी है उससे नफल कबूल नहीं किए जाते, तो वो भी नहीं हुआ है ना। ये ऐसे ही मुर्गा की जान में भी मुल्ला को मजा नहीं आया। आपने सोचे नमाज पढ़ के हम कुछ ले लेंगे, तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपकी फर्ज बाकी तो फर्ज ही पढ़ दो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के सजदे में जाओ और सजदे में जाके परवरदिगार से दुआ करो। तो हमारे हाथ बुजुर्ग बोले ये सच कि हमारे एक माहौल गलत फहमी ऐसा है कि ये हाथ ऐसा करके दुआ मांगना हम जरूरी समझते हैं। ये क्या है, जब आप नमाज से फारिग हो तो नमाज से फरागत के बाद अल्लाह की बारगाह में जो सवाल करने का तरीका है वो ये बताया गया है कि इसे जैसे फकीर लोग मांगते हैं ना, आप ऐसे अल्लाह की बारगाह में मांगो, वो है तरीका। लेकिन इसके अलावा हमेशा या हर दुआ में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मगर हमने ऐसा जरूरी समझा। उसके बाद हम जाते हैं सजदे में, और सजदे में जाते तो हाथ ऐसा उल्टा रखते हैं, ऐसा उल्टा रख के कुछ लोगों मैंने देखा, मैं जहाँ देखता हूँ बोल देता हूँ, ऐसा उल्टा हाथ रख के सज्जा करके और फिर दुआ मांगते हैं। ये इतनी गलती है कि नमाज में हाथ उल्टा रखना ये शैतान का काम है, और हमने समझ लिया दुआ मांगने के लिए सज्जा कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं, अगर सजदा आप दुआ मांगने के लिए कर रहे हो ना, उसमें भी वैसे ही सजदा करना है, हाथ को सीधे रखना, उल्टा नहीं करना है। अब दुआ मांगते मांगते शैतानी तरीका अपना लोगे तो फिर क्या होगा? तो मिलेगा थोड़ी, वैसे नहीं मिलना। तो मैं अभी कर रहा था कि नमाज में एक चीज है सजदा, और सजदा वो चीज है जब बंदे को अपने रब से सबसे ज्यादा करीब कर देता है। तो हम दुनिया में इधर उधर क्यों भटके जाए? हमारा परवरदिगार हमको अपने बारगाह में बुलाना चाहता है, करीब करना चाहता है, करीब करने का जरिया अता फरमा दिया है। नमाज पढ़ो, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपनी हाजतें दिल से अर्ज करो, देने वाला हमारा परवरदिगार मौजूद है ना। अब उसके बाद ये है कि एक सवाल पैदा होता है, हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती, हमको ऐसा लगता है ये अगर आप सोच रहे हो कि आपकी गलती है, हमारी दुआ कभी रद्द नहीं होगी अगर सही दुआ मांगे, ये यकीन रखो प्यारे, हमारा परवरदिगार किसी नेता का नाम नहीं है। हमारा परवरदिगार फरमाता है वकाल तुकुनी अस्तजीब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमा दिया है कि तुम मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूंगा। किसी नेता का वादा थोड़ी है, इलेक्शन से पहले वादा किया बाद में भूल गए। ये तो परवरदिगार आलम का वादा है, वो फरमाता है तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। कैसे बदल जाएगा? उसका वादा बदलता है क्या? अल्लाह के वादे वही नहीं बदलते चाहे, वो कबूल फरमाता है। ये और बात है कि हमको कबूलियत समझ नहीं आती। एक छोटी सी मिसाल दे दें तो वक्त हो गया है, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप मिसाल के तौर पर मांग रहे हो ए अल्लाह हमको 1 करोड़ रुपया दे दे, एक मिसाल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप मांग रहे हो। आप ये दुआ कर रहे हो कि अल्लाह मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे, और अल्लाह को मालूम है कि तुम बाहर निकलने वाले, बिजली का तार गिरने वाला है, तुम तय होने वाले, तुमको तो नहीं मालूम ना, अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह पाक ने उस 1 करोड़ वाली दुआ को ऐसे कबूल फरमाया कि तुमको बिजली के तार से बचने का जरिया था फरमा दिया। अब बताओ अगर तुमको 1 करोड़ मिल जाता और बिजली का तार गिर जाता तो वो 1 करोड़ किस काम के तुम्हारे? अल्लाह को मालूम है ना। इसीलिए दुआ मांगने का जो तरीका हमको बताया गया कुरान पाक में, क्या मांगने का कहा
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। हमको तो मालूम ही नहीं भला क्या है भाई, हमारे परवरदिगार को मालूम है भला क्या है, तो हम तो दुआ मांगते हैं, दुनिया के किसी भी मकसद के लिए दुआ मांगते हैं, हमको नहीं मालूम कि उस मकसद के आगे पीछे क्या है। हमारे परवरदिगार को हमारी पैदाइश से वफात तक, जन्नत में जाने तक सारे औलाद का सारा इल्म हासिल है, उसको पता है क्या होने वाला है, तो हमारी उस दुआ के बदले में किसी बड़ी बला को टाल देता है। तो बताओ, ये भला का टाल देना आप क्या समझ लो, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। और फिर भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम तकदीर के खिलाफ दुआ मांगने लग जाते हैं, जो अल्लाह ने फैसला कर दिया उसके खिलाफ दुआ मांगने लग जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं कि हम उसके खिलाफ दुआ मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये दुआ मांगी कि अल्लाह हमें औलाद, हमको औलाद दे। अल्लाह को मालूम है तुमको औलाद मिलेगी तो जूते जूता मारेगी, ऐसी औलाद मिलने वाली है, तो अल्लाह पाक ने नहीं दिया तुमको, उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना के रखा। तो अब बताओ अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। क़यामत का दिन होगा, हमारे आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, बंदा खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा और उसको नेकियों के पहाड़ दिए जाएंगे। बंदा अर्ज़ करेगा परवरदिगार ये कौन सी नेकी है, इतनी बड़ी बड़ी नेकी मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, मैंने तो इनके बारे में सोचा तक नहीं था, इतनी बड़ी नेकियां मुझे कहाँ से नसीब हो रही है। जवाब दिया जाएगा ये तुम्हारे फला होने की फला दुआ है, जो अल्लाह के बारगाह में तूने अर्ज़ किया था, दुनिया में वो दुआ कबूल करना करीब मसलहत नहीं था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी उस दुआ को कबूल फरमा कर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर रखा। उस वक्त बंदा अर्ज़ करेगा काश मैं पूरी जिंदगी दुआ ही करता रहता और मेरी सारी दुआ दुनिया में कोई भी कबूल ना होती, सारी दुआएं आज यहाँ के लिए इकट्ठी की जाती तो आज तो मैं बहुत अमीर होता। मगर अब पछताए का वक्त है जब चिड़ियाँ चुग गई खेल। अरे ये दुनिया है प्यारी, तो ये कभी मत सोचे कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। यकीन रखें कि हमारी दुआ अल्लाह पाक सुनता है, कबूल फरमाता है। इस यकीन के साथ दुआ कीजिए। अच्छा उसका असर दुनिया में ज़ाहिर हो ना हो ये हमारी हिम्मत की बात नहीं, ये उसकी मसलहत की बात है ना। कोई ज़रूरी है क्या कि हम जैसा करें वो वैसा ही करें? वो खुदा है कि हम खुदा हैं? सोचो, आप हम बंदा हैं, खुदा वो है, वो अपनी मर्जी चलाएगा कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मिसाल के तौर पर हम किसी के लिए ऐसा जो होता है ना, जरा सा दो बातें हो गई, गिर गए सजदे में, दुआ मांगे अल्लाह इसके ऊपर बिजली गिरा दे, इसको हलाक कर दे। अरे बंदे को अल्लाह ने कितने प्यार से पैदा फरमाया, तुम उसको हलाक करने की दुआ ही मांगने लगते। सोचो अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा ऐसे नहीं क्या? और अगर सुन भी ले और वो उसको पलट दे तो उसको इख्तियार है, वो पलट दे के नहीं, उसको नहीं, तुम्हें हलाक कर देता होगा, तुम्हें बहुत परेशान हो रहे, फिर क्या होगा? इसलिए अल्लाह की बारगाह में अदब के तकाज़े के मुताबिक दुआ कीजिए और कुछ नहीं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया इसको मांगना नहीं आता, तरीका नहीं आता, तो हर हाजत में दरूद शरीफ पढ़ो, ये तुम्हारी दुआ को काफी जाएगा। हर हाल में दरूद शरीफ का विर्द रखो, कोई दुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर दुआ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हमारे रसूल ने हर तरह की दुआएं मांग दी है कि उम्मत के लिए भला है। हम खुद पढ़ते, उनकी बारगाह में पेश करते, वो हमारे लिए दुआ फरमा देंगे। और हमारा दुआ करना चाहे 1000 साल के बाद कबूल होने वाला हो, हमारे आका एक मरतबा भी फरमा देंगे, है ना। तो मैं बात आज करना चाहता है नमाज की, एहतमाम कीजिए। और नमाज कोई बहुत सारी हमारे पर फर्ज नहीं है, सिर्फ 7 नमाजें फर्ज है। कितने? गिनती याद रखना, कितनी नमाजें फर्ज है? अब एक मरतबा गिन के बताइए कौन कौन सी, याद भी होना चाहिए ना लोगों को, कौन कौन सी फर्ज है? फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। छठवीं कौन सी? जुमा। 7वीं कौन सी? जनाजा। बस ये 7 नमाजें फर्ज है ना। इसके अलावा जो है वाजिब, नफ्ल, सुन्नत, नफल वगैरह है, कभी बात करेंगे। अभी मैंने फर्ज की बात करना शुरू किया था, तो ये 7 नमाजें फर्ज है। हम कहते हैं अमल करना मुश्किल है, इतना आसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा फरमाया, दुनिया की सारी नेमतों से नवाजा, सिर्फ 7 नमाजें फर्ज की। वो तो 50 फर्ज का रहा था, ये 7 पढ़ ले, समझ गए? 50 का सवाल था, कम देगा है ना, ये 7 करने का। हम कहते बहुत भारी है, इस्लाम बहुत आसान है, बस हम करने लग जाएं